سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ اسی طرح آرمینیا فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں تو گویا فتوحات کا سیلاب ہی آ گیا۔ کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ چنانچہ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ سیستان، تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ طالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔ بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا۔ اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا۔
सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में वो भागकर तुर्किस्तान चला गया था। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौर में वो खुरासान और फिर सीस्तान पहुंचा। मुसलमानों के खिलाफ बगावत की, लेकिन इस्लामी लश्कर ने दोनों जगह उसकी बगावत को कुचल दिया। खुद यज़दगर्द एक पंचक्की वाले देहाती के हाथों मारा गया। ये वाकया उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के 8वें साल पेश आया। इसके बाद ईरान में बगावतों का सिलसिला रुक गया। इसके बाद रूम के बादशाह कॉन्स्टेंस ने शाम और मिस्र पर हमले का इरादा किया। वो 500 जंगी जहाजों के बहरी बेड़े के साथ इस्लामी साहिलों की तरफ बढ़ा, लेकिन इस्लामी लश्कर ने उसे जबरदस्त लड़ाई के बाद शिकस्त फाश दी। रूमी दुम दबाकर भागे। भागने वालों में उनका बादशाह भी था। इस जंग को मस्तूलों वाली जंग कहा जाता है। इस तरह रूमियों का गुरूर खाक में मिल गया। रूमी बहरी बेड़े का रोब हमेशा के लिए खाक में मिल गया। समुंदरी लड़ाई में मुसलमानों की ये जीत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के जमाने का इतना अजीमुशान कारनामा है कि हम इस पर फख्र कर सकते हैं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के जमाने की फतूहात दो किस्म की हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो इलाके फतह हुए थे, उनमें से कुछ बागी हो गए थे। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में इन इलाकों को फिर से फतह किया गया। इस तरह इन इलाकों पर दोबारा इस्लाम का झंडा लहराने लगा। इनमें आजरबाईजान, आर्मीनिया, हमदान, रे, खुरासान और इस्कंदरिया वगैरह की बगावतों का कुचला जाना शामिल है। दूसरी किस्म की फतूहात वो हैं जो मुसलमानों ने नए इलाके फतह किए। इनमें अफ्रीका यानी तराबुलुस, मराकश, अलजजायर, ट्यूनिस के इलाके, नीज इनके अलावा कब्रस, तब्रिस्तान, जुर्जान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और कफकाज वगैरह फतह हुए। कफकाज को कोहे काफ भी कहा जाता है। ईरान के बहुत से इलाके उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में फतह हो चुके थे। कुछ बाकी थे, मसलन तूस, बेहक, नेशापुर, बलख वगैरह। ये सब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में फतह हुए। बहरी बेड़े की फतह के बाद मुसलमान बुहैरा रूम पर छा गए, दुनिया की एक जबरदस्त बहरी ताकत बन गए। शाम के वाली सैयदना अमीर मुआविया ने सैयदना उस्मान की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि हमें हर वक्त रूमियों की तरफ से बहरी हमले का खतरा रहता है। उनके मुकाबले के लिए हमारे पास भी बहरी बेड़ा होना चाहिए। इस पर उन्होंने बहरी बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। सैयदना अमीर मुआविया ने मिस्र के वाली अब्दुल्ला बिन साद के साथ मिलकर एक अजीमुशान बहरी बेड़ा तैयार किया, जिसमें कई 100 जंगी जहाज थे। जहाज बनाने का पहला कारखाना मिस्र में कायम हुआ। बहरी बेड़े के साथ बहरी फौज भी कायम की गई। इस बेड़े का निस्फ हिस्सा शाम और निस्फ मिस्र के साहिल पर रहता था। जल्द ही मुसलमानों की बहरी ताकत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने कब्रस के जजीरे को फतह कर लिया। फिर मस्तूलों वाली लड़ाई में रूमी बहरी बेड़े को शिकस्त दी। ये शिकस्त इस कदर जबरदस्त थी कि फिर मुद्दते दराज तक रोमियों को इस्लामी मुल्कों पर हमला करने की जुर्रत न हुई। सैयदना उस्मान ने अपने जमाने में रिफाए आम्मा यानी आम लोगों की भलाई के बेशुमार काम किए। इनमें से कुछ ये हैं। नजद के रास्ते पर एक शानदार सराय बनवाई, उसके साथ एक छोटा सा बाजार बसाया, मीठे पानी का एक कुआं खुदवाया। खैबर की तरफ से कभी कभार सैलाब आता था। मदीने से कुछ फासले पर एक बंद तामीर करा दिया ताकि सैलाब का रुख मदीने की तरफ न हो। नहरें खुदवाकर भी उसका रुख मोड़ा गया। इस बंद को बंदे महजूर कहा जाता है। कूफे में मुसलमानों के लिए एक अजीमुशान मेहमान खाना बनवाया। पूरे मुल्क में ऊंटों और घोड़ों की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया। उनके लिए जगह जगह चिरागाहें बनवाई, उनके करीब चश्मे बनवाए। बास चिरागाहें इतनी बड़ी थीं कि उनमें कई कई हजार ऊंट और घोड़े परवरिश पाते थे।
इन चिरागाहों की निगरानी करने वालों के लिए उनके साथ मकान बनवाए। मदीने की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को अच्छे तरीके से बनवाया ताकि मुसाफिरों को कोई तकलीफ न हो। उन पर जगह जगह चौकियां और सराय बनवाई, चश्मों के पानी का इंतजाम किया, सड़कें बनवाई, नदी नालों और दरियाओं पर पुल बनवाए, मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद तामीर करवाई। आपके जमाने में मदीने में एक बड़ा बैतुल माल था। इसके अलावा हर सूबे में एक बैतुल माल होता था। ये गोया सरकारी खजाने थे। इनसे हकदारों को हक दिया जाता, मुहताजों की मदद की जाती। बेशुमार नए इलाके फतह होने की वजह से मुल्क की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। चुनाचे जिन लोगों को बैतुल माल से वजीफे मिलते थे उनमें 100 दिरहम का इजाफा कर दिया गया। रमजान में उम्महातुल मोमिनीन यानी उम्मत की माओं को 2 दिरहम रोजाना, जबकि दूसरे लोगों को 1-1 दिरहम बैतुल माल से दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें खाना भी दिया जाता। मुकद्दमात का फैसला करने के लिए जगह जगह काजी मुकर्रर थे। काजी आलिम लोगों को मुकर्रर किया जाता था, उन्हें माकूल तनख्वाहें दी जाती। काजी हाकिम के मातहत नहीं होते थे। इस तरह वो हर मुकद्दमे का फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक करते थे। उन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता था। बड़े बड़े शहरों में मुफ्ती भी थे। काजी हजरात को किसी मसले में कोई मुश्किल पेश आती तो वो मुफ्तियों से फतवा तलब करते, उनके फतवों के मुताबिक फैसला करते। हुकूमत के कामों में सैयदना उस्मान बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा से मशवरे लेते थे। आप सारी जिंदगी अपने माल से दीन की खिदमत करते रहे। एक खिदमत ये थी कि तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की एक क़िरात पर जमा कर दिया, हरम शरीफ में तौसी करवाई, इर्द गिर्द के मकानात खरीद कर ये काम करवाया। आपने खाना काबा पर पहली बार निहायत कीमती गिलाफ चढ़ाया। इससे पहले मामूली गिलाफ होता था। मस्जिदों में खुशबुओं की धुनी आपके जमाने से शुरू हुई। सफों को सीधा रखने के लिए आदमी मुकर्रर किए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम की तबलीग और इशाअत का बहुत ख्याल रखते थे। दूसरे मजाहिब के लोगों से बहुत अच्छा सलूक करते थे। मुख्तसर ये कि आपके दौर में बहुत शानदार काम हुए, इस्लाम ने बहुत तरक्की की, लेकिन अफसोस आपकी खिलाफत के आखिरी चंद साल बहुत मुश्किलात में गुजरे। इसकी वजह वो फितने थे जो अंदर ही अंदर पक रहे थे, सुलग रहे थे। फितनों की ये आग फिर भड़क उठी। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फितने बर्पा करने वाले वो लोग थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन असल में वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों का रूप धार लिया था, और ये रूप उन्होंने धारा ही इसलिए था कि मुसलमानों की जड़ों को खोखला करें, उनके खिलाफ साजिशें करें, फितने जगाएं, उन्हें आपस में लड़ा दें ताकि मुसलमान कमजोर से कमजोर होते चले जाएं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ साजिशों का बाजार जिन लोगों ने गर्म किया, उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन सबा था। ये यहूदी नस्ल का एक मक्कार आदमी था। उसने परहेजगारी का लिबास ओढ़ रखा था। लोग उसकी बातों में आते चले गए। बेशुमार लोगों को उसने अपना हम ख्याल बना लिया। उसने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु और उनके गवर्नरों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वो उनके हर काम में नक्स निकालने लगा, उन पर बेजा इल्जामात लगाने लगा। बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग उसके गिर्द जमा हो गए। उनमें ऐसे लोग भी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, उनमें अभी पुख्तगी नहीं आई थी। कूफा, बसरा और मिस्र